Oh, hello there. Welcome back on my channel. My friend will be so proud I said this. Okay, and jokes aside, thank you so much for 100 subscribers, and I'm very happy that you all helped me to reach this goal. I never really believed I will continue this YouTube thing for this long, but since we are, let's see what happens next. And this is a special Q&A video to know you guys better, to know my audience better. Even though this is not exactly a live interaction, I hope you all like this video, and let's jump into it right away. So the first question is from Harsh on my Instagram. Which DAW do you use? Well, I use the DAW Cakewalk. It's a daughter brand of BandLab, I would say, because I used to use BandLab beforehand when I started doing a bit of music. BandLab is an online website wherein you can record stuff from your mobile itself or from your laptop itself. You don't need any equipment or anything for that. And I think I learned a bit about how to mix, record, how to do the basic stuff from BandLab only. And then afterwards, when I realized that I should do a bit more than just time pass, I decided to buy different equipment, and at that point BandLab was not enough, so I started researching a bit, and I got to know that BandLab only has a DAW which can be downloaded on Windows. So I downloaded Cakewalk, and here I am making all my music on Cakewalk. Thank you for the question, Harsh. Okay, so here is the second question. It's from Shivam Rathod. Hello Shivam. How did you have the idea of starting a YouTube channel? Was it yours or someone else's suggestion? I actually have this YouTube channel since 2017, if I'm not wrong. I was in 6th grade back then. मतलब 6th grade just खत्म हुआ था. And in 6th grade, I think most of you will relate to this. We had been taught a software called Movie Maker. So I loved that software a lot. So मैं time pass में edit करता था. So कुछ भी करता था. I used to do time pass on that. तो summer vacation में, और तब मैं गिटार ना सीख रहा हूँ, मतलब गाना जस्ट सीख रहा हूँ मैं गिटार में बजाना. हॉफनर का गिटार था मेरा, एक हाइकोस्टिक का. उसमें आई यूज्ड टू डू जस्ट प्रैक्टिसिंग. सो आई थॉट चलो दो तीन गाने करते हैं, एंड इफ अच्छे से हुआ वी विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब. तो एक मैंने किया, 2 गाने किए. एक तो पापा और मेरी बहन के साथ भी किया, तो वो ही अच्छा हुआ. तो वो एक समर वैकेशन में किया था. फिर 2017 के बाद आई फॉरगॉट अबाउट इट कि मेरे पास चैनल भी था. तो वो ही मतलब. And later on, just first lockdown में 3 of my friends, me and 3 of my friends decided कि हम लोग एक band form करते हैं. We did. हम लोग ने almost 2 गाने भी किए, और पर क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और फिर 10th भी था, तो obviously उतना हम लोग डिवोट नहीं कर पाए. तो obviously later on we decided कि चलो we will do it sometime later, and we decided to call it quits. So हम लोग ने वो बैंड का चीज़ छोड़ दिया. लेकिन मेरे चैनल का जो अभी पहला वीडियो है, मैंने 2017 वाली डिलीट कर दिया है सब पुराने कवर्स, बट जो अभी है मेरे चैनल का पहला वीडियो वी आर स्कार्स गाने का, वो भी मैंने कंपोज किया था, मैंने लिखा भी था. और उसमें आरुष मेरा एक दोस्त है, तुमको पता भी होगा, उसका भी इनपुट था. And we did it, and I think, and Shashwat played the drums for it. So I think that's how I started my channel. My mom one day came to me and said कि मेरा एक फेवरेट गाना है खैरियत, तुम और तुम्हारी बहन गाओ. तब मैं उतना गाता भी नहीं था, मतलब मुझे तो गाना पसंद नहीं था, मतलब I didn't trust my voice that much.
बट देन मम्मी ने बोला ट्राई तो करो, तो किया एंड आई लाइक इट. तो मैंने बैंड लैब जो मैंने बोला आप लोगों को, तो तब मैं डॉ यूज़ नहीं करता था. आई यूज टू यूज़ बैंड लैब ओनली, नो केक वॉक वगैरह. तो मैंने बैंड लैब में मेरा और मेरी बहन का वॉइस रिकॉर्ड किया. उसमें ही मिक्स जो जैसा जितना मुझे आता था उस टाइम पे मैंने किया. एंड या आई मेड दैट सॉन्ग. और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मुझे धीरे धीरे लगा कि यार अभी यूट्यूब करना चाहिए. तो वी डिड इट. बट आई थिंक आई विल से अगर मेरे दोस्त लोगों ने उस टाइम पे ये बैंड का वो शुरू नहीं किया होता, आई वुड हैव नेवर बी एट दिस स्टेज वेर आई एम ऑन यूट्यूब, जिधर मैं कवर्स अपलोड कर रहा हूँ. एंड आई एम ऑल्सो डूइंग पॉडकास्ट, अ गेमिंग सीरीज. सो यू नो, आई थिंक the framework for it started when we did that first, when we formed our band. नहीं तो मेरा YouTube दिमाग में था ही नहीं 3 साल. That's how I got the inspiration, suggestion, जो भी आप बोलना चाहो. I started my channel this way. So okay, good question, thank you so much. So now moving on to the next one. This is from Anusha Das. Hi Anusha, are you gonna become a musician? See, no, I don't want to become a musician. Music, YouTube is just, music is just my hobby and entertaining is just my hobby. And YouTube is somewhere where I can put those stuff. And even Instagram, I sometimes put some stuff on Instagram too. You can follow me on Instagram, CashKSG24. You might see it somewhere on the screen. I don't really want to become a professional musician. I mean, music is not my career choice aisa. I am just doing it as a hobby. That's it. And I will keep doing it as a hobby, even though I will take a different line of work, obviously. But I will keep continuing this till I want to, hopefully forever. And obviously in the near future, or maybe in the future, the frequency of the videos will reduce. Obviously I don't post a lot. I mean 1 or 2 months में एक बार करता हूँ, और कभी कभी छुट्टियों के टाइम पे एक सीरीज कर देता हूँ म्यूजिक की, पॉडकास्ट की या फिर गेमिंग की. बट अदरवाइज आई थिंक आई विल कीप डूइंग इट फॉर जस्ट माई पैशन. दैट्स इट. गलती से मेरे को 1000 सब्सक्राइबर, 100,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, चाहे 1 मिलियन भी हो गया, आई डोंट केयर. This will remain a non-profitable, non-monetization channel just for entertaining people, entertaining my friends, because you all are my friends. So it will just remain my hobby and my passion. That's it. Thank you. This is my senior, my ex-senior from Podar, Ibhanan. Fun fact, all subscribers are all those close people. We never promote you. ऐसा है क्या? Okay, yes, I agree कि मतलब I have currently, 1 second, how many subscribers do I have? I have 108 subscribers currently. और इसमें से मैं बोल सकता हूँ 80%, 90% शायद लोग मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है. So obviously this makes a bit of sense कि हाँ, close people ही mostly subscriber है. एंड वी नेवर प्रमोट यू. ये बात भी सही है, कोई प्रमोट नहीं करता. नहीं तो मेरे पास कितने व्यूज होते, कितने सब्सक्राइबर होते, शेयर किया होता. तो शेयर करो, मेरे सब वीडियोस को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, अच्छा होगा. बट या आई वॉज जस्ट किडिंग. थैंक यू सो मच. जितना भी सपोर्ट आपने किया है, आप सब लोगों ने किया है, काफ़ी अच्छा है. आई एम फॉर्चुनेट इनफ फॉर दैट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम TRN Beats, तरुण. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मेरे साथ कोलैब भी किया है उसने. हमने हारे और पानीदार रंग का एक मैशअप कोलैब किया था, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब इन इट. सो आई वांट यू टू, आई विल लिंक इट अबव सो यू कैन जस्ट वॉच इट. ही आस्क्स, व्हेन आर यू मेकिंग अ ओरिजिनल हिंदी सॉन्ग? आई वॉन्ट टू डू इट. सी मतलब एक गाना लिखने के लिए ना बहुत फ्री टाइम चाहिए रहता है, और मतलब बहुत दिमाग लगाना, बहुत सोचना पड़ता है. और मतलब उतना टाइम अभी फिलहाल है नहीं कि सोच के करो. करना है तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते. मुझे करना भी है एक ओरिजिनल हिंदी गाना, एक ओरिजिनल इंग्लिश गाना, और एक ओरिजिनल हिंदी इंग्लिश मिक्स. आई वॉन्ट टू क्रिएट. मुझे ऐसा करना है कि ये ईयर खत्म होने के पहले आई हैव अ मिनी एल्बम. एंड मिनी एल्बम इन द सेंस एटलीस्ट 3 songs.
एटलीस्ट 3 सॉन्ग्स मेरे पास हो कि जो मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स बोल रहा हूँ, एक हिंदी एक इंग्लिश और एक दोनों का मिक्सचर, आप मैशअप कह सकते हो. एंड आई होप आई डू इट बाय द ईयर एंड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Shomik Trivedi, hi bro. How much excited are you about CR7's entry in Man U? मैं इतना इमोशनल हो गया था क्या बताऊँ. मुझे अंदर से खुशी हो रही थी इज लिविंग यूवे एंड क्या बताऊँ, इट्स सच अ इमोशनल मोमेंट. मतलब एक मैन्यू फैन समझेगा कि भाई कितना खुशी हो रहा था मुझे अंदर से कि वो वापस मैन्यू में आ रहा है. लाइक ऑब्वियसली मैंने लाइव मैन्यू के मैचेस नहीं देखे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, क्योंकि तब मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता था. फायदा भी हुआ था क्या, मैं बॉर्न हो गया था, पर ऑब्वियसली आई वाज वेरी स्मॉल. तो जो देखा है मैंने सिर्फ यूट्यूब में ही देखा है. और भाई एक इतना आई एम अ मतलब अच्छा खासा मैन्यू फैन. आई एम अ वेरी बिग मैन्यू फैन. आई एम obviously I support the clubs where Ronaldo goes, but my first priority and my biggest club is Manchester United. And when CR7 is coming back here तो मतलब भाई और क्या चाहिए बस. और CR7 in Manchester United भाई मुझे लगा ही नहीं था ये जिंदगी में कभी होगा, बट हो गया है. तो लेट्स सी, अगला 3 साल तो मिलेगा ही एंजॉय करने के लिए. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड जीतेगा मैन्यू, प्रीमियर लीग जीतेगा आराम से. तो नहीं बोल दिया, नहीं जीत जाएगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है. जीत जाएगा, हो जाएगा. अच्छा, एक और क्वेश्चन है तरुण का. आपसे कोलैब करने के लिए कौन से लेबल से बात करनी होगी? भाई कितना रुलाएगा क्या अभी. देख, अगर किसी को मेरे साथ बात करके पॉडकास्ट करना है, किसी को मेरे साथ गेम खेलना है, किसी को कोलैब करना है म्यूजिक के ऊपर, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे ईमेल आईडी में भी आप मेल कर सकते हो फॉर एनी कोलैब इंक्वायरीज और जो भी है. तो अगर आपको करना है तो मेरा ईमेल आईडी काफ़ी है, किसी लेबल को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. कैश केस जी काफ़ी है. ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट जॉनरा? मेरा अभी फिलहाल कोई फेवरेट जॉनरा इन द सेंस तो कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम स्टिल लिसनिंग. सी अभी मतलब मैं अभी 16 ईयर्स का हूँ ना, मतलब वी आर स्टिल डेवलपिंग आवर टेस्ट. आई मीन हमारा टेस्ट अभी तो कॉन्स्टेंट हुआ नहीं है. लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल, मतलब मैं एकदम से बॉलीवुड गाने सुनता था. एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माई इंट्रोड्यूस्ड मी टू EDM सॉन्ग्स. तब मैं सिर्फ EDM सुनता था. बट देन माई गिटार सर ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू रॉक मेटल. तब से मैं एकदम पागल ऐसे रॉक मेटल सुनता हूँ एंड मोस्ट ऑफ देम आर माई फेवरेट. बट और फिर मेरी बहन ने मेरे को K-pop सुनाना चालू कर दिया, और मेरे एक दोस्त भी उसमें शामिल है, BTS, K-pop. तो BTS और क्या था, ब्लैक पिंक, हाँ वो दोनों मैं सुनता हूँ कभी कभी. तो या आई मीन आई डू नॉट हैव अ फेवरेट जॉनरा एज ऑफ येट, बट आई लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, इवन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, गजल्स. कुछ गजल बहुत ही सही है, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं. बट आई डोंट हैव अ जनरल टेस्ट, जनरल जॉनरा जो मैं मतलब जो मैं अच्छे से सुनता हूँ सिर्फ वही मेरा फेवरेट है. ऐसा कुछ तो फिलहाल नहीं है, बट at one point I will surely have it. How many instruments can you play? Okay, first of all, I will consider acoustic guitar and electric guitar as 2 different instruments. As simple as that. I play ukulele now. I also play harmonium. Yes, it sounds surprising, but I do play harmonium. I used to learn classical singing, so उसमें harmonium बजाना पड़ता था. But when I migrated to Bombay, I stopped classical singing. So obviously वो नहीं है. So yeah, I think I play these instruments only. Yeah. Next, live stream and blogs we need man. देखो लाइव स्ट्रीम में मैं क्या करूँगा मुझे अभी तक पता नहीं है. देखो मैं गेमिंग बहुत ही कम करता हूँ. मतलब अगर मैं एक गेम जो मैंने कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ में खेला है वो है सिर्फ PES 2021. PES not 2021, मैं तो बहुत 2 साल से खेल रहा हूँ. PES मोबाइल, हाँ PES मोबाइल में मोस्टली वही एक कांस्टेंट गेम है जो मैं खेलता रहता हूँ. उसमें मैं उतना कुछ खास नहीं हूँ. और पर अभी मैंने COD शुरू किया है. COD मोबाइल काफ़ी अच्छा गेम लगता है मुझे वो.
आई इवन ट्राइड PUBG फॉर अ मंथ 8th या 7th में, बट मुझे बहुत ही बोर हो गया था उससे. बट आई लव COD मोबाइल अ लॉट, एंड मे बी साल खत्म होने के पहले एक COD का सीरीज आ भी जाए, गेमिंग सीरीज करना है. वो है बकेट लिस्ट में है, तो वो करेंगे, COD का सीरीज करेंगे. पर लाइव स्ट्रीम आई डोंट थिंक आई विल डू इट. आई मीन लाइव स्ट्रीम में मेरे को जाना नहीं है, वो बहुत मेरा उतना करना नहीं हो. लाइव स्ट्रीम करके क्या करूँगा मैं, लाइव स्ट्रीम नहीं करना है. ब्लॉग्स, बट ब्लॉग्स मुझे करना था. आई वॉन्टेड टू स्टार्ट ब्लॉग्स मेरे स्कूल के फेयरवेल में, बट किया नहीं, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है. मतलब ब्लॉगिंग भाई, यू नीड अ लॉट ऑफ, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भाई तुम ब्लॉग्स करना है. ब्लॉग्स भाई, ब्लॉगर लोग बहुत सही होते हैं. ब्लॉग्स करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ब्लॉगिंग वेरी सुन. मतलब वेरी सुन नहीं, मतलब मेरे बर्थडे पे आई विल स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन माई बर्थडे. दैट इज माई टारगेट कि मैं अपने बर्थडे में अपना पहला ब्लॉग करूंगा और डालूंगा. सो दैट्स माई एम. तो हाँ, ब्लॉग तो जरूर करूंगा. लाइव स्ट्रीम आई एम नॉट वेरी श्योर. मैं लाइव स्ट्रीम का उतना बड़ा फैन हूं नहीं, बट लेट्स सी. लाइव स्ट्रीम नहीं होगा. ओके, दिस इज द फाइनल वन. ये इवान भार्गव की तरफ से है. भाई, सेटअप टूर एंड इक्विपमेंट रिव्यू फॉर वानाबी कश्यप्स. अरे भाई, बस क्या बोल दिया तूने ये. ओके, सो सेटअप टूर बहुत जल्द अभी करता हूँ. सेटअप टूर और इक्विपमेंट रिव्यू भी उसमें ही कर दूंगा, बट उसमें उतना ऑडियो क्वालिटी मुझे लगता नहीं अच्छा लगेगा सुनने में. तो ऑब्वियसली मैं करता हूँ इक्विपमेंट रिव्यू. और डोंट बी मी, आई मीन बी योरसेल्फ. जो तुमको करना है, आई मीन इवन इफ यू आर स्टडिंग, तुम IIT पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, आई थिंक इफ यू वांट टू मेक कंटेंट, एंटरटेन पीपल एंड यू लाइक डूइंग इट, यू शुड डू इट एंड पोस्ट इट ऑन Instagram, ऑन YouTube, एंड आई थिंक यू शुड डू इट. आई मीन इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि तुम ये करोगे तो पढ़ाई में नुकसान होगा. उल्टा पढ़ाई के साथ साथ ये करते रहोगे तो तुम्हारा मतलब ब्रेन थोड़ा सा, और अभी वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है तो बाहर निकल नहीं पाते तुम लोग. सो इफ यू डू दिस यू विल बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. सो आई थिंक you should start making content if you want to, and yeah, that's it. So heading on to the equipment review and Arab Kharab setup tour. Hello guys, welcome to the setup tour. यहाँ पर lighting खराब है, sorry. So now just follow me. So this is my Arab Kharab setup. ओके, सो अभी ऑब्वियसली मैंने उतना अच्छे से अरेंज नहीं किया है. मैं यूजुअली जब पॉडकास्ट या फिर अभी जो Q&A का वीडियो किया है मैंने मैंने इस पोजीशन में किया है, जिसमें मैं ये फिलहाल मेरा जो ये पूरा सेट है मेरा. ये माइक्रोफोन है, फिर ये माइक्रोफोन का और पॉप फिल्टर, एक माइक्रोफोन का सेट रहता है. ये माउनो कंपनी का है. मैं इस पूरे सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन यूज दिस. दिस इज अ वेरी गुड माइक्रोफोन सेटअप फॉर एनी बिगिनर हु इज ट्राइंग टू मेक म्यूजिक और वांट्स टू डू पॉडकास्ट, गेमिंग, रिकॉर्डिंग, जो भी है. सो ही कैन यूज दिस. बट अगर आप लोग कंडेंसर माइक्रोफोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड अ ऑडियो इंटरफेस, और उसके लिए बेस्ट मुझे तो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस और जो रिकमेंड भी करते हैं बाकी लोग यूट्यूबर्स, ये है Behringer का UMC22. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर इट. हाँ, या Euphoria UMC22, यस, दैट्स द बेस्ट वन फॉर इट. ये बहुत ही अच्छा USB इंटरफेस है. इसमें फैंटम पावर भी है जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स को पावर देता है. And then we have this headphone. Sennheiser का headphone है. This is best for mixing and also for any kind of, trackback, playback, whatever you call it. And this is an HP laptop. जो मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं ये सब कुछ भी नहीं खरीद पाता. This laptop is what really, this is a very powerful laptop. I mean, इसमें सब कुछ कर सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है इसमें. सो इट्स अ वेरी गुड
piece of equipment. And I will, इसका specs मैं obviously दे दूंगा description में या फिर फोटो दिखा दूंगा आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कितना चाहिए रहता है for basic purposes. And for recording podcasts and normal interactive videos, I use OBS Studio. It's a very good software, so you can use that. And for video editing, बहुत surprising लगेगा आपको, but I use KineMaster. Yes, मैं KineMaster use करता हूँ for all video editings. And yeah, I think that's it. And okay, and also this one. This is my new Kepma guitar. I think you have seen it before, but if you have not, this is my new Kepma guitar. I hope you have a good look at it in a future video. And I also use the Ibanez electric guitar. This is the Ibanez GRX40. This is my sister's. ये भी मेरी बहन का है, तो ये मैं कुछ बोलूँगा नहीं. And I also have a SoundX amplifier. मैंने आज तक कभी, हाँ ये मैंने एकदम वो सबसे पहले वाले जो मेरे वीडियोस रहते हैं, मैंने उसमें ही सिर्फ ये यूज किया, क्योंकि तब मेरे पास ऑडियो इंटरफेस नहीं था, जो तो मैं लैपटॉप में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था. बट ये मैं अभी यूज ही नहीं करता हूँ. एम्पलीफायर की जरूरत ही नहीं पड़ती हुई रिकॉर्डिंग के लिए. बट फॉर प्रैक्टिस एंड स्टफ एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, दिस इज द बेस्ट थिंग. तो स्कूल बैंड के लिए और जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ इलेक्ट्रिक के साथ, तो एम्पलीफायर SoundX. एंड अंडर 10K ये सब, मतलब विटाल नहीं ऑब्वियसली, और मतलब सिर्फ एक्सक्लूडिंग लैपटॉप टू, बट ये माइक्रोफोन, हेडफोन, ऑडियो इंटरफेस एंड all the recording stuff, you can get it under 10K. So I think it's a pretty reasonable stuff. But otherwise, this is all I use, and this is my equipment review and my setup tour. Thank you. So thank you so much for watching, guys. I hope you liked the setup tour and this video as a whole. So like, share and surely comment on this video, and it will mean a lot to me if you show your support. And I hope you like this Q&A. मतलब मुझे ये करना था, I mean 100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो एक Q&A तो करना था. अभी अगला Q&A में करूँगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद, जो मुझे लगता नहीं ज़िंदगी में कभी होने वाला है, बट चलो देखेंगे. सो थैंक यू सो मच. अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछना था, आप नहीं पूछ पाए, सो यू कैन जस्ट राइट ऑन डाउन इन दी कॉमेंट्स. मैं आपको वहाँ पर ही जवाब दे दूँगा अपना. So I hope you liked this video overall. Follow me on Instagram if you haven't already. उधर मैं unplugged covers और कुछ अलग अपने खुद के चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरे लाइफ में हो रहा है. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया. Thank you.